So we are starting with elasticity of demand. That is from economics का chapter number 4 from Sandeep Garg, elasticity of demand. For this आप लोगों ने पहले chapter number 3 को अच्छे से go through कर लिया होगा, so that the basics of demand those are clear to you. So along with this, I'll be giving some notes. I hope you all are ready with a book and a pen so that those notes can be written down, jotted down. This is going to help you a lot in your exam preparation. Most of the question you will find will be covered in my notes only. Along with this, if you study the text from Sandeep Garg, this is going to be a really good and added advantage. Elasticity of demand. This is a small chapter, not a very big chapter. कि बहुत चिंता की बात हो, एकदम छोटा सा चैप्टर है, नॉमिनल सा चैप्टर है, जरा सा ध्यान से करेंगे तो एकदम क्लियरली 100% समझ में आना चाहिए. ठीक है. अब कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, जो ये कंसेप्ट है इलास्टिसिटी का, दैट कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय Professor Marshall. Concept of elasticity, this was developed by Professor Marshall in his book Principles of Economics. So ये आप लोगों को याद रखना है कि the concept of demand was developed by Professor Elasticity of Demand. Basically, the concept of elasticity was developed by Professor Marshall in his book Principles of Economics. Now if I am to start with concept of elasticity of demand. So what is elasticity of demand? देखिए मैंने आपको पहले ही चैप्टर, जब हमने अर्लियर चैप्टर किया था, इफ यू रिमेम्बर, तो हमने किया था कि डिमांड जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है. फर्स्ट वन इज प्राइस and then we have factors other than price. First one is price and next one was factors other than price. अब प्राइस में कैसे होता था? जब मैं प्राइस की बात करती थी तो प्राइस मतलब क्या होता था? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. इट वाज movement along demand curve. जैसे कि एक ही डिमांड कर्व है, I'll use black pen over here to make demand curve. Suppose this is my demand curve. So इसी demand curve में at times it may go this way. अगर वो इस नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, इस साइड शिफ्ट हो रहा है, डिक्रीज इन प्राइसेस. व्हाट डज दिस मीन? बिकॉज इस एक्सिस पे हम लोग प्राइस दिखाते थे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दिखाते थे. एक्स पे क्वांटिटी, वाई पे प्राइसेस. सो इन दिस केस the prices are decreasing, as you can see, and when the prices are decreasing, that is the downward movement. अगर यहाँ पे movement मेरी downward है along the demand curve, in case of downward movement along the demand curve, what is happening? We have expansion of demand. If you remember, we have expansion of demand. और vice versa भी होता है. Suppose अगर movement is in opposite direction, that is upward movement along the demand curve, in that case it is increase in price. See, you can see
This is price. This is y-axis is showing prices. This is increase in price. In case the prices are increasing, there will be contraction of demand. Contraction of demand will be there. So what are we seeing here is कि demand के जो changes होते हैं वो दो reasons की वजह से हो सकते हैं. First one is price, other one is factors other than price. Other than price में क्या होता है? अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व नहीं होती है, बल्कि डिमांड कर्व का राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता था. अब जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि डिमांड कर्व पे, जो डिमांड कर्व है उस पे डिफरेंट प्राइसेस का क्या इफेक्ट आता है. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर मुझे डिफाइन करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज measurement of change in quantity demanded in response to a change in price of the commodity. So again, I'm going to take you back to the same example where we had a demand curve. On this demand curve, we had expansion or contraction of demand as the price changes. So what are we going to study here? कि किस तरीके से measure किया जाता है, not exactly तरीका, but measurement, कि कितना change आता है quantity demanded में in case the price of a commodity is changing. So if I am to take some examples, so let me take example of milk. If I take example of milk, considering it to be a basic necessity, अगर एक घर में milk की requirement suppose 2 liters है, तो कितना भी price increase हो जाए, एक basic consumption level will always be there. Like 2 liters say they can decrease it to maybe 1.5 liter or maybe to 1 liter. But unless and until there is very huge hardship, the family will try to maintain its consumption of milk. So in that case, prices में बहुत change भी होगा, तो भी you will find a little change in quantity demanded. But on the other hand, if you look at example, if you take an example कि मुझे gold की बात करनी है या luxury cars की बात करनी है, so in that case what happens is price में बहुत थोड़ा सा भी change होगा, तो you will find huge change in quantity demanded. So we see two kinds of goods here जिनकी अलग-अलग sensitivities हैं towards the price. Sensitivities हैं, we can also say कि ये अलग-अलग responses हैं to the change in prices. कभी-कभी बहुत थोड़े से price change पे भी quantity demanded में बहुत बड़ा change आ जाता है, कभी-कभी बहुत ज्यादा change in prices with respect to percentage. See, I'm not talking about कि दूध में 5 रुपए per liter बढ़ गया, but if I consider the base price, percentage wise increase in case of milk के प्राइस में सपोज 10 रुपीज पर लीटर इंक्रीज हो रहा है, तो इट्स अ ह्यूज चेंज. बट गोल्ड के प्राइसेस में अगर 10 रुपीज पर आउंस चेंज हो रहा है या 10 रुपीज पर ग्राम भी चेंज हो रहा है, तो दैट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट.
आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज जो चेंज होता है इन द प्राइस, उसका कैसे अफेक्ट आता है क्वांटिटी डिमांडेड पर। तो ये जो अफेक्ट होता है ये भी डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ गुड, वेदर द टाइप ऑफ गुड इज बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, या फिर टाइप ऑफ गुड इज लाइक द थिंग्स जो कि जिनके लग्जरी गुड्स हैं, जिनके बगैर नॉर्मली हमारा काम नहीं चलता है, या फिर कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनका कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्डेड। अगर मुझे घर का फर्नीचर चेंज करना है, नहीं पाई फाइन की नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा प्राइसेस हाई हैं, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं करूंगी कि ठीक है अभी नहीं चेंज करती, 2-3 महीने बाद चेंज कर लूंगी, दिवाली टाइम है, वाई टू बाई फर्नीचर बहुत महंगा है, आफ्टर दिवाली प्राइसेस विल डिक्रीज, एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू बाई। सो इवन दिस कैन हैपन। बहुत से गुड्स ऐसे होते हैं जिनमें प्राइसेस जो है वो वेरी करते हैं, प्राइसेस वेरी करते हैं, कभी कम वेरी करते हैं, कभी ज्यादा वेरी करते हैं। वेरी, इफ यू लुक एट द मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड, शायद ऐसी कमोडिटी हमें नहीं मिले जिसके प्राइसेस कितने भी चेंज हो जाएं लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगी। दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। बहुत से गुड्स ऐसे भी होते हैं, मतलब अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ ऐसे गुड्स का कि जिसके प्राइस में अगर बहुत थोड़ा सा भी चेंज है, बहुत थोड़ा सा भी अगर उसके प्राइसेस में चेंज है तो क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड उसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, दैट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जिस चीज डिमांड जो है, अगर प्राइसेस में चेंज है तो क्वांटिटी डिमांडेड में 100% चेंज आएगा ही आएगा। यस, कुछ गुड्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें चेंज बहुत ज्यादा आएगा, कुछ गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें चेंज शायद कम आए, कुछ गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलमोस्ट लाइक जितना चेंज आया, जितना प्राइस में चेंज आया, शायद टू सर्टेन एक्सटेंट उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में। बट इसमें भी अलग अलग प्राइसेस पे वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं दूध का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो दूध में बहुत जैसे 10 रुपीज का चेंज इज अ वेरी बिग चेंज, गोल्ड में 10 रुपीज का चेंज इज लाइक नथिंग, कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन ऐसा कोई गुड नहीं होता है, दैट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि कितना भी प्राइस चेंज हो जाए, कितना भी प्राइस चेंज हो जाए, उसमें गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट गोइंग टू चेंज। या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आई कैन से कि क्वांटिटी डिमांडेड सेम प्राइस पे कितनी भी इंक्रीज हो सकती है, अगर प्राइस इज नॉट गोइंग टू चेंज। एक ऐसा सिचुएशन जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी भी इंक्रीज हो जाए तब भी प्राइस सेम है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी भी डिक्रीज हो जाए तब भी प्राइसेस सेम ही है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जाएगी तो द सप्लायर इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विल इंक्रीज द प्राइस, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जा रही है। रिसोर्सेस, as we have seen in earlier chapter also, resources in an economy are limited. रिसोर्सेज जब मेरे लिमिटेड हैं तो मैं उन रिसोर्सेज से लिमिटेड गुड्स ही बना सकती हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एट द सेम प्राइस, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, so the resources will become more and more dearer to me, resources will become more and more dearer to me, मुझे ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे, तो I will be wanting more price for those resources, for parting with those resources, या फिर उन resources को use करके जो मैं commodities बना रही हूँ, I'll be wanting probably more prices। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कितनी भी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए मेरे गुड्स की तो आई विल नॉट रिड्यूस प्राइसेस, दैट्स नॉट नॉर्मल। मुझे प्राइसेस, अगर मैं ये देख रही हूँ कि मेरा क्वांटिटी डिमांडेड जो है मार्केट में इट इज डिक्रीजिंग, तो इवन आई विल ऑल्सो ट्राई कि क्या पता
प्राइजेस को डिक्रीज करने से शायद कुछ लोग मोटिवेट हो टू परचेज। तो ये वाली जो सिचुएशन है कि कितना भी प्राइजेस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट गोइंग टू चेंज, या फिर कितना भी क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, प्राइस इज नॉट गोइंग टू चेंज। These both situations are hypothetical. Now we are going to see this thing with the help of diagram. So we are going to see first in this price elasticity of demand. Y-axis O, X-axis, Y-axis I'm having price, we have quantity demanded on X-axis. The diagram is for degree of price elasticity. So in that case, 5 situations possible. First one, this one. This is perfectly elastic. So now, if I am to talk about perfectly elastic demand, what is perfectly elastic demand? So as you can see here, it is horizontal to x-axis. You will find that it is horizontal to x-axis. अगर ये horizontal to x-axis है, that means कि कितना भी price में changes आ जाए, कितना भी quantity demanded में change आ जाए, as you can see here, see, ये quantity demanded Q1, the price is still P. Quantity demanded Q2, price is still P. Quantity demanded Q3, price is still P. So do you think such demand curve is possible? So what is perfectly elastic? When there is, please write it down, there is an infinite demand at a particular price
and demand becomes zero with a slight rise in the price, then such demand is known as perfectly elastic demand. So यहाँ पे अगर प्राइस में जरा सा भी राइज होगा, ऐसा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कहना है. दिस टाइप ऑफ कर्व, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, व्हाट इट इज सेइंग दैट अगर जरा सा भी प्राइसेस में राइज होता है तो डिमांड विल बिकम जीरो. इन दैट केस इलास्टिसिटी, इधर ही लिख लेंगे, not here, sorry, we will write over here only with small d here. Elasticity of demand is equal to infinity. Elasticity of demand is equal to infinity. You can see my demand curve in this case. The dotted one, the black dotted one is my demand curve. This is horizontal straight line which is parallel to x-axis. So in this case, जैसे मैंने आपको दिखाया था Q1, Q2, Q3, at all the levels we see that quantity demanded is changing, but the price is not changing. Now the next one is perfectly inelastic demand. This is perfectly inelastic demand. So this is my demand curve, DD dash. In this case, my elasticity of demand, आप यहाँ पे लिख सकते हैं E capital D small. Elasticity of demand is equal to 0. This is perfectly inelastic demand. Please note down, when there is no change in demand with the change in price, then demand for such a commodity is said to be perfectly inelastic. Here you can see elasticity of demand is 0. Elasticity of demand is, I'll give you one small example for this. क्या आप सब लोगों ने रबड़ बैंड देखा है? रबड़ बैंड जो बालों में लगता है, रबड़ बैंड, वो इलास्टिक होता है, तो यहाँ पे जो भी हम समझ रहे हैं इलास्टिसिटी, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिमांडेड, सो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड के हिसाब से बताया था. अगर एक मेरे पास में ऐसा बैंड है जो मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ स्ट्रेच नहीं हो रहा है, मेरी कोशिश करने के बावजूद भी मैं उसे स्ट्रेच कर रही, इनइलास्टिक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि मैं उसे स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही हूँ, वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है, वो इनइलास्टिक है. सो आई कैन से दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. क्वांटिटी डिमांडेड, माई क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट चेंजिंग विथ द प्राइस. इसको इसी तरह से हमें याद रखना है.
क्वांटिटी डिमांडेड एट एनी प्राइस इज नॉट चेंजिंग। इनइलास्टिक है ना, एक ऐसा मटेरियल का मेरा बैंड बना हुआ है जिसको मैं कितना भी स्ट्रेच करने की कोशिश करूं, स्ट्रेच नहीं हो रहा है। दैट मीन्स उसमें क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट चेंजिंग। प्राइसेस में कितना भी चेंज आ जाए, क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट चेंजिंग। याद रखने का दूसरा तरीका, फॉर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक मतलब चेंज हो जाती है, हल्का सा भी प्राइस में चेंज मतलब क्वांटिटी डिमांडेड जीरो। हल्का सा भी मतलब प्राइस में चेंज, क्वांटिटी डिमांड। बहुत इलास्टिक है, बहुत इलास्टिक है, इनफाइनाइटली इलास्टिक है। पहले वाले केस में जीरो था, इलास्टिसिटी जीरो था, याद रखने का बेस्ट तरीका है। और सेकेंड वाले केस में परफेक्टली इलास्टिक की अगर मैं बात करूं तो इनफाइनाइटली वो इंक्रीज हो सकता है साइज में। सो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे हल्के से प्राइस चेंज से क्वांटिटी डिमांडेड हो सकता है जीरो। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको याद रखने का ये बेस्ट तरीका है, डू इट, लर्न इट विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इलास्टिक नहीं है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेट देयर बी एनी चेंज इन द प्राइस। इलास्टिक है, इंक्रीज ही होता जा रहा है। कहां तक इंक्रीज हो रहा है? इंफिनिटी तक इंक्रीज हो रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंफिनिटी, हल्का सा भी प्राइस चेंज हैंडल नहीं कर पाएगा। एट दिस प्राइस ओनली जो भी क्वांटिटी आपको सेल करना है यही रहेगा। आपकी क्वांटिटी कितनी भी इंक्रीज हो जाए आप इसी प्राइस पे सेल करेंगे, आपकी क्वांटिटी कितनी भी डिक्रीज हो जाए आप इसी प्राइस पे सेल करेंगे। यू आर नॉट मोटिवेटेड। अगेन both the situation, perfectly elastic and perfectly inelastic, hypothetical situation है, रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। अगर मेरी डिमांड इतनी इंक्रीज हो रही है, resources will become dearer to me, prices are bound to increase, prices are bound to increase। अगर लोग डिमांड कर रहे हैं तो prices are bound to increase। Now moving further, now we'll go to this one. Now this one, as you can see here very well, this is very near to perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand say it is more closer. So what is this kind of demand? This is elastic less than 1. Elastic less than 1. अब इसका क्या मतलब हुआ? Elastic less than 1. Price less than 1. As you can see, it is nearing perfectly inelastic. इसका मतलब क्या है? You can write elasticity of demand is less than 1. इसको डिटेल में अगर मुझे बताना है आपको तो यहाँ पे क्या, as you can see, the curve is steeper. Can you see? The curve is steeper. As you can see, the demand curve is steeper, lesser. Demand curve जो है वो less steeper है और उसका जो slope है it is more inclined to y-axis. You can see ये जो less elastic demand, this is also less elastic demand. This is less elastic demand. तो यहाँ पे क्या होता है? Percentage change in quantity demanded, percentage
change in quantity demanded is less than परसेंटेज जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होता है इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस so as you can see over here, as you can see at this price quantity demanded price P1 पे quantity demanded was Q2. Now again, Q3. I'm so sorry, this is Q1. I should have named it Q2. So what does this mean? यहाँ पे क्या हो रहा है? In this case, what is happening is कि आपका elasticity of demand less than 1 है. मतलब क्या है कि अगर आपका 20 पर अगर आपका quantity demanded, suppose आपका quantity, this is price P2. अगर मेरा केस लेती हूँ quantity demanded increased by 20%. 20% increase in quantity demanded. If there is 20% increase in quantity demanded, then this can happen अगर प्राइस में मेरे इससे ज्यादा फॉल हो. सपोज 50% फॉल इन प्राइसेस है. So quantity demanded percentage का change is less than price percentage change in price. As you can see, this distance is more. This distance is more. The gap, the change in price is so much more, but the change in quantity is comparatively less. So say for an example, अगर quantity price में 50% fall हुआ है, तो probably quantity demanded में 20% ही increase हो रहा है. It is following law of demand. With the decrease in prices, quantity demanded is increasing, but quantity prices में बहुत ज़्यादा change है, तो थोड़ा change है quantity demanded में. Vice versa is also true. Like अगर मेरा prices यहाँ पे fall हुए हैं, अगर prices में बहुत ज़्यादा increase हुआ, suppose P2 is my original price and my prices increased to P1. प्राइसेस ओरिजिनल P2 से P1 गए हैं, तो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा? Q2 से Q1 गया, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई है. बट यू कैन सी प्राइस में बहुत चेंज आया, तो क्वांटिटी डिमांडेड में कंपैरेटिवली कम चेंज आया. प्राइस बहुत इंक्रीज हुए, तो क्वांटिटी डिमांडेड में कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, बेटा कल ही हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में विल डू अदर 2 पार्ट्स, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड हाईली इलास्टिक डिमांड.